नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इवेंट्स। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आर्थिक राष्ट्रवाद हमारे आर्थिक विकास का आधार है। अब आर्थिक राष्ट्रवाद को स्वीकार करने का समय आ चुका है। वो आज दिल्ली में भारत स्टार्टअप्स और एमएसएमई शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उद्यमियों की सहायता करने का भी आह्वान किया है, जिससे उनके प्रदर्शन को अधिकतम स्तर पर ले जाने में सहायता मिल सके। उपराष्ट्रपति ने वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए कहा कि केवल वही चीजें आयात करें जो बहुत जरूरी हैं। उपराष्ट्रपति ने कॉरपोरेट जगत से देश में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए मदद करने का आग्रह भी किया है। उपराष्ट्रपति ने देश में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन, वित्तीय मदद, समर्थन देने का अनुरोध किया है। Our economy is in positive transformation. There is no doubt about it. It is a sea change, a soothing change, a feel-good factor. MSME and startups have made massive contributions, and the result is we are already the 5th largest global economy, on way to becoming the 3rd largest in next 2-3 years. In recent years, India has emerged as a global hub for innovation and entrepreneurship with a thriving startup ecosystem and numerous success stories. Time for trade and industry and bodies to fully leverage the entrepreneurial culture that is taking root in hinterlands of the country through the vibrant MSME sector. It is a sector that is underrated when it comes to performance. Its performance is much beyond the perception it has in urban locales. It is highly impactful. It is impacting transformational change in Tier 2, Tier 3 cities and villages. Hand-holding these entrepreneurs will help them optimize performance, apart from being a confidence-building measure. I'm happy to note that this is already in one of your sessions. The deliberations are bound to be very productive. This is known as small sector. I do not know why, because it has a big role. A small sector, reckoned as small sector, has a big role in our economy. इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि व्यावसायिक नीतियों और पहलों में सुगमता के साथ सकारात्मक शासन ने देश में उद्यमिता और नवाचार की भावना को बढ़ावा दिया है। हाल के वर्षों में भारत एक संपन्न स्टार्टअप इकोसिस्टम और कई सफलता की कहानियों के साथ इनोवेशन और उद्यमिता के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई और स्टार्टअप्स के ने बड़े पैमाने पर देश की प्रगति में योगदान दिया है। From just over 350 startups in 2014, in 3-digit 354, we now have more than 1.3 lakh startups with number of unicorns surpassing 100. Just imagine, after having overtaken journey in most difficult terrain, we have traversed to these phenomenal results. This growth is a testament to the entrepreneurship and spirit of innovation that lies in our human resource. Today, India is home to some of the most innovative startups in the world, disrupting traditional industries and setting up new benchmarks of excellence. From fintech to health tech, agri-tech to clean energy, our startups are not just creating wealth, but also generating employment, driving socio-economic development, and most importantly, addressing some of the most pressing challenges facing our nation and the world. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के पास अतीत की निराशा को छोड़कर
आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर मौजूद है और विकसित भारत के निर्माण में विकसित राजस्थान की भूमिका काफ़ी अहम है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि विकसित भारत देश में गरीबी दूर करने, गुणवत्तापूर्ण रोजगार को सृजन करने और देश में आधुनिक सुविधाएं जुटाने का एक अभियान है। प्रधानमंत्री ने आज राजस्थान में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, जिसमें कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, रेलवे परियोजनाएं और महत्वपूर्ण और परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वो विकसित भारत की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक शब्द या भावना नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक परिवार का जीवन समृद्ध बनाने का एक अभियान है। आजादी के बाद आज भारत के पास ये स्वर्णिम कालखंड आया है। भारत के पास वो अवसर आया है जब वो 10 साल पहले की निराशा को छोड़कर अब पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। आज हम बड़े सपने देख रहे हैं, बड़े संकल्प ले रहे हैं और उन्हें पाने के लिए तन मन से जुटे हैं। जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो ये केवल शब्द भर नहीं है, ये केवल भाव भर नहीं है, ये हर परिवार का जीवन समृद्ध बनाने का अभियान है। ये गरीबी को जड़ से मिटाने का अभियान है। ये युवाओं के लिए अच्छे रोजगार बनाने का अभियान है। ये देश में आधुनिक सुविधाएं बनाने का अभियान है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि युवा, महिलाएं, किसान और गरीब ही हमारे लिए 4 सबसे बड़ी जातियां हैं और उन्हें इस बात से खुशी है कि डबल इंजन की सरकार इन वर्गों के सशक्तिकरण के लिए दी गई गारंटी को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की नई सरकार के पहले बजट में 70,000 रोजगारों का प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मतदाता बना युवा विकसित भारत के विजन के साथ खड़ा है। हमने सरकार में आने के बाद देश को बिजली की चुनौतियों से निकालने पर ध्यान दिया। हमने नीतियां बनाई, निर्णय लिए। हमने सौर ऊर्जा जैसे बिजली उत्पादन के नए नए सेक्टर्स पर जोर दिया और आज देखिए हालात बिल्कुल बदल गए हैं। आज भारत सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से बिजली पैदा करने के मामले में दुनिया में अग्रणी देशों में आ चुका है। हमारे राजस्थान पर सूर्य देव की असीम कृपा है, इसलिए राजस्थान को बिजली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के रेवाड़ी में 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल रहीं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा भी किया है। आज जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 इतिहास बन चुका है। आज जम्मू कश्मीर में महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनका हक मिल रहा है। इसलिए ही तो लोगों ने एक और संकल्प लिया है जिसमें 370 हटाया गया और उस बीजेपी का टीका भी 370 सीटों से होगा। लोगों ने एक और संकल्प लिया है और जनता जनार्दन कह रही है, आप लोग कह रहे हैं, जिसने 370 हटाया,
जिसने 370 हटाया उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। बीजेपी के 370 ही पहुंचाएंगे एनडीए को 400 पार। साथियों, यहीं रेवाड़ी में मैंने पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी। कांग्रेस वाले सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का झूठ बोलते थे। रेवाड़ी की वीर धरा से लिया गया वो संकल्प मैंने आपके आशीर्वाद से पूरा किया। देश भर के सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स का शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री ने रोहतक मेहरम हांसी के बीच नई रेल लाइन का भी शिलान्यास किया और नई रेल सेवाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने गुरुग्राम में मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला भी रखी है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डबल इंजन सरकार विकसित हरियाणा को बनाने में जुटी है। आज पूरा विश्व भारत में निवेश के लिए उत्सुक है और निवेश के लिए हरियाणा एक उत्तम राज्य है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी देश के उन नागरिकों के साथ है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ भी नहीं है। गारंटियां दी थी, देश की इच्छा थी कि दुनिया में भारत की साख बढ़े। ये हमने करके दिखाया। देश की इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे राम लला के दर्शन कर रहा है। और तो और कांग्रेस के लोग, जो लोग हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश में ड्राई फ्रूट्स के उत्पादन को प्रोत्साहित करने पर काफी जोर दिया है। वो आज दिल्ली में मेवा इंडिया 2024 सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर उस पूरे माहौल को संबोधित कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्राचीन काल से भारत मेवों का बड़ा आयातक रहा है, लेकिन जलवायु विविधता वाले इस देश के अलग अलग प्रदेशों में अब भिन्न भिन्न मेवों के उत्पादन के गंभीर प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था को आर्थिक विकास का आधार बताते हुए भारत में तेजी से हो रहे विकास की चर्चा की। भारत के अलग अलग राज्यों की अलग अलग जलवायु क्लाइमेट है। क्लाइमेट की विविधता भारत में है। भारत की भौगोलिक स्थितियां भी अलग है। भारत की संस्कृति विविधता भारत की ताकत है और दुनिया में हमने दिखाया है कि हम किस तरीके से हमारी जितनी डाइवर्सिटी है उतनी लोकतंत्र की हमारी ताकत है। और आज दुनिया देखती है कि इतनी विविधताओं वाला देश, जहां अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खान पान, अलग अलग उत्पादन, अलग अलग जलवायु परिवर्तन, उन सबके बाद भी भारत इन विविधताओं के कारण ही एक है। ये दुनिया आश्चर्यचकित करती है।
लोकसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई है कि इस सम्मेलन के दौरान होने वाला मंथन भारत में ड्राई फ्रूट्स के उत्पादन और निर्यात में काफ़ी वृद्धि लेकर के आएगा। उन्होंने टेक्नोलॉजी उपयोग से ड्राई फ्रूट्स के प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग में सुधार का भरोसा भी जताया है और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से इससे आगे रोजगार भी सृजित होंगे। काफी सालों से हम विशेष रूप से ड्राई फ्रूट और मेवे दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट करते हैं और मुझे खुशी है कुछ ड्राई फ्रूट, कुछ हमारी जड़ी बूटियां और हमारे कोई फ्रूट्स आज हम दुनिया में बेचने का काम करते हैं। अगर आपके प्रयास है प्रगतिशील किसानों को नई दिशा दे, जो हमारी जिस देश प्रदेश का जैसा क्लाइमेट है उस क्लाइमेट के अनुसार कौन सा मेवा, कौन सा ड्राई फ्रूट वहां उत्पादन होने की संभावना है, पैदा होने की संभावना है, उस पर विचार करें, उनको तकनीकी दक्षता दें, उनको एग्रीकल्चर की नई टेक्नोलॉजी देने का काम करें। दुनिया के अंदर जहां जहां भी ऐसे ड्राई फ्रूट पैदा हो रहे हैं उनके बढ़िया पौधों और बीजों को लाने का यहां पर काम करें ताकि आने वाले समय के अंदर हम भारत के किसान को ड्राई फ्रूट उत्पादन का बड़ा केंद्र बनाने में कामयाब हो सके। आज के लिए नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।